Good afternoon, sir, and my friends. I'm Simala Kadri, student of MSc Physics first year from Dr. Sakuntala Mishra, National Rehabilitation University, Lucknow. I received some topics of Unit 2nd from the paper Classical Mechanics PHM 101 for presentation. So I deliver some topics of presentation to you through PowerPoint presentation. Here my first topic of presentation is inertial and non-inertial frame of reference. But firstly, I will explain what is a frame of reference. The frame of reference is an imaginary coordinate system which is always supposed to be associated with the observer is at the center of this system. Means फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक इमेजनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि एक ऑब्जर्वर से हमेशा जुड़ा होता है और ऑब्जर्वर जो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस हैं तो ऑब्जर्वर इसकी ओरिजिन पे सिचुएटेड रहेगा या स्थित रहेगा. ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ऑल्सो एक्सप्लेन्ड टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. I will explain inertial frame of reference. A frame of reference in which law of inertia holds is called inertial frame of reference. ऐसा frame of reference जिसमें न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करेगा या वैलिड रहेगा इस फ्रेम में तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. Now the two important point of inertial frame of reference and two valid condition is here. Number one is Newton's first law of motion, law of inertia is valid in inertial frame of reference. न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मोशन जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होगा. Now second point is all the frames which are either in rest or moving constant velocity v is equal to 0 are known as non-inertial frame are known as inertial frame of reference. Means that कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो या तो रेस्ट की कंडीशन में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यहाँ पे हम v की जो वैल्यू है 0 भी पुट कर सकते हैं तो ऐसा फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है. नाउ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वी नो दैट हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन हमारा dv/dt होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पे हम v की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन 0 के इक्वल होगा यानी कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है तो ये फ्रेम हमारा नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम कहलाएगा. Hence inertial frame of reference is also known as non-accelerating reference frame. Now second is non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. A frame of reference in which law of inertia does not hold is known as non-inertial frame of reference. ये non-inertial frame of reference इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जस्ट अपोजिट होगा. उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड कर रहा था और इस फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करेगा तो ऐसा जो रेफरेंस फ्रेम है वो हमारा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा. नाउ टू मेन कंडीशन इज हेयर number one is all frame of reference moving with uniform velocity is known as non-inertial frame of reference. ऐसा reference frame जो uniform velocity से move करेगा उसे हम non-inertial frame of reference कहेंगे. Now second point is for such a type frames the acceleration is not 0, a is equal to 0 so these are also known as accelerating frame. ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जस्ट अपोजिट होगा. इसमें एक्सीलरेशन हमारा 0 नहीं होगा यानी एक्सीलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ऐसा फ्रेम हमारा एक्सीलरेटिंग फ्रेम कहलाएगा क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है उस फ्रेम में तो वो हमारा एक्सीलरेटिंग फ्रेम कहलाएगा.
Now, example of inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. A train or car moving with constant velocity, any place at rest in inertial frame. तो ये जो हमारा फ्रेम होगा ये इनर्शियल फ्रेम का एग्जाम्पल है. नाउ सेकेंड इज अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एट टर्न. ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है. नाउ सेकेंड टॉपिक इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन. Second topic of presentation is Lorentz transformation. Lorentz transformation of drive impediment of postulate of special theory of relativity consider to reference frame S and S dash which are moving with constant relative velocity v along x axis. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो है वो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है. और ये इसमें हम जो हमारे साइंटिस्ट लॉरेंज थे उन्होंने जो फेमस इक्वेशन दी थी उसे हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं. और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बिलोंग करता है. नाउ हेयर द टू रेफरेंस फ्रेम. यहाँ पे दो रेफरेंस फ्रेम है और हमारा जो इवेंट है वो भी दो इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं. एक हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है उसमें जो है हमारी एक्सिस है एक्स वाई जेड एंड सेकंड रेफरेंस फ्रेम में हमारी एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश. और हमारा जो एक रेफरेंस फ्रेम है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा एक्स वाई जेड टी एंड सेकंड जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम. एंड नाउ इक्वेशन इज हेयर. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी. एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. वाई डैश इज इक्वल टू वाई यानी कि वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, z prime is equal to z, t prime is equal to t minus vx upon c square upon under root 1 minus v square upon c square. Now third point, my presentation is time dilation. Time dilation is a concept about changes in the passage of time as related to relativity. It is a difference of elapsed time between two events as measured by the observer moving and stationary. टाइम डायलेशन हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है जो पैसेज ऑफ टाइम में जो चेंजेस हो रही हैं हम उसके बारे में बात करते हैं और ये रिलेटिविटी से रिलेट करता है. यहाँ पे दो इवेंट हो रहे होते हैं. उन दो इवेंट का नेम है मूविंग एंड स्टेशनरी. यहाँ पे मूविंग और स्टेशनरी इवेंट ये टू टाइप के इवेंट हो रहे होते हैं जिसमें हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं. डिफरेंस ऑफ एलेप्स्ड टाइम बिटवीन टू इवेंट के बीच जो हमारा एलेप्स्ड टाइम है उसका हम डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करते हैं जो कि एक ऑब्जर्वर से मेज़र किया जाता है. दो जो इवेंट हो रहे हैं वो एक हमारा मूविंग कंडीशन में है और एक हमारा स्टेशनरी इवेंट है. A clock moving with a relativistic speed relative to a stationary observer appears to go slow. अब हम यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात करेंगे टाइम डायलेशन में. नाउ दिस इज टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट मेजर्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज मोर देन द टाइम इंटरवल ऑफ दैट इवेंट मेजर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जर्वर. टाइम इंटरवल एक ऐसा इवेंट है जो मेज़र किया गया है टाइम डायलेशन में स्टेशनरी ऑब्जर्वर के द्वारा और ये मूविंग ऑब्जर्वर के टाइम इंटरवल का जो इवेंट मेज़र किया गया है वो उससे ज़्यादा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर के मेज़र किए गए टाइम इवेंट से. स्टेशनरी ऑब्जर्वर का टाइम इवेंट मूविंग ऑब्जर्वर के टाइम इवेंट से ज़्यादा है. Now formula is time dilation is t is equal to t naught upon under root 1 minus v square upon c square.
t is less than t naught because under root 1 minus v square upon c square is less than 1. तो यहाँ पे जो t नॉट है वो रेस्ट की कंडीशन में है. Now fourth topic of my presentation is length contraction. The length of any object in a moving frame will appear shortened in the direction of motion or contracted. The amount of contraction can be calculated from Lorentz transformation. The length is maximum in the frame in which the object is at rest. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से कैलकुलेट किया गया है. इसमें लेंथ मैक्सिमम है फ्रेम में और ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है. नाउ हेयर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यहाँ पे एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फिक्स्ड फ्रेम है और नाउ जो सेकंड हमारा रेफरेंस फ्रेम है वो मूविंग फ्रेम उसको हम एज्यूम करेंगे. एक फिक्स्ड फ्रेम है और एक हमारा मूविंग फ्रेम है. एक मूवेबल फ्रेम है या फिर हम कह सकते हैं दूसरा रेस्ट फ्रेम है, रेस्ट की कंडीशन में है. नाउ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारा यहाँ पे उसका फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू L नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ पे जो L नॉट है हमारा वो मूविंग रेफरेंस फ्रेम से मेज़र किया गया है और L हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से कैलकुलेट किया गया है. L इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड L नॉट इज़ इक्वल टू x प्राइम 2 माइनस x प्राइम 1. But since the two measurement made in the fixed frame are made simultaneously in that frame, T2 is equal to T1. बट यहाँ पे दो मेज़रमेंट हैं जो कि फिक्स्ड फ्रेम में है साइमल्टेनियसली. इसमें T2 इज इक्वल टू T1 होगा. Now fifth topic of my presentation is relativistic relation between momentum and energy and also known as Einstein's mass energy relation. Now state that is according to Einstein, mass and energy are equivalent and thus are interconvertible according to relation given as E is equal to mc square. This is a famous equation known as Einstein mass energy relation. यहाँ पे जो हमारा E is equal to mc square इसमें m और c आपस में interconvertible होंगे. Now proof is thank you sir. Thank you all of you guys and my friends.